dienes mean that a molecule having two double bonds. Now, those two double bonds may be isolated double bonds or they may be conjugated double bonds. When we say that the system is conjugated, we mean that we have an alternate double and single bond system, and that is what we call a conjugated system. But when we talk about isolated dienes, so when the system is not conjugated, like when it does not have that alternate single and double bond system, we say that the double bonds are isolated. So we might have one double bond that is isolated, and we might have two double bonds. And in that case, the molecule is known as a diene. But that diene can also be isolated. For example, let me draw something here. So for example, we have this molecule. So it's a diene because this molecule has two double bonds, but it's an isolated diene, which means that these two double bonds are isolated double bonds. You can see that there are two carbon-carbon single bonds in between these two double bonds. So this is not a conjugated system. When we have a double bond next to a single bond and then we have another double bond, this is what we call a conjugated diene system. We can have more than two double bonds, but here we will be talking about addition to conjugated dienes. So when we talk about dienes which are isolated, like in this form, so it's a simple alkene. It's not a diene, you cannot say, because it's not conjugated. So addition across this isolated diene will be exactly similar to what we have discussed earlier. But when we're talking about conjugated diene, now it's not a simple alkene, it's a different system. And addition across this conjugated diene may result in more than one products. And these two products are the direct addition product and the conjugate addition product. So let's explain this with the help of an example. That is addition of HBr to conjugated diene. So if we have a conjugated diene and we want to add HBr across double bonds, so let's see if we have one product as a result, or we have both the direct addition products and the conjugate addition product as a result. This is the simplest of dienes that can have, and we want to add HBr across these double bonds. Now, this product here, you can imagine that it is the result of addition of this HBr across this double bond. H will go to the carbon atom that already has more hydrogen atoms. We will have a secondary carbocation generated here. So it's a simple addition of HBr across the double bond. इस product को हम कहते हैं direct addition product. But what about this product? ये थोड़ा सा unusual सा लग रहा है. Unusual इस तरह से कि एक तो आप देख सकते हैं कि कार्बन 2 और 3 के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, लेकिन प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो कार्बन 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया है, और कार्बन 1 2 और 2 3 के दरमियान जो डबल बॉन्ड्स थे वो सिंगल में कन्वर्ट हो गए हैं, और ब्रोमीन भी एक टर्मिनल कार्बन पे अटैच है, rather than like in this प्रोडक्ट जहां पर ये सेकंड कार्बन पे अटैच है, यहाँ ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो गया। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? एक तो आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट है इसमें एक डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेट पे भी एक डबल बॉन्ड है। आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें डायरेक्ट कौन सा है और कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट कौन सा है? अगर आप देखें कि इसमें एक डबल बॉन्ड खत्म हो गया है और उसी डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे H और Br अटैच हो गए हैं, जैसे इस केस में, सो इट्स अ डायरेक्ट एडिशन टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड जो एक रह गया है उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है, सो नाउ यू कैन से दैट दिस माइट बी अ कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, सो इस प्रोडक्ट को हम कॉन्जुगेट एडिशन कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, और इस प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। इसका एक और नॉमेनक्लेचर भी है। We also call this conjugate addition as 1,4 addition, and the direct addition is known as 1,2 addition. अब इस nomenclature का मतलब क्या है? 1,4 और 1,2
किस लिहाज से कहते हैं? देखिए, आपके पास मॉलिक्यूल्स इस तरह से सिंपल नहीं होंगे हर बार। ये तो मैंने आपको कहा कि सिंपलेस्ट एग्जांपल है, द सिंपलेस्ट ऑफ द डाइंस दैट वी कैन have. But you can have molecules in which these carbon atoms are substituted. You have a longer chain जिसमें इस तरह का डाइन बीच में कहीं पर मौजूद है और उसके क्रॉस आप HBr ऐड करना चाहते हैं, तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 ही कार्बन हो। तो आपके पास जो नॉमेनक्लेचर है 1,4 एडिशन का और 1,2 एडिशन का, इसका मतलब मैं आपको बता रहा था कि 1,4 या 1,2 ये जो पोजीशंस हैं, ये मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की पोजीशन नहीं है, जिस तरह आप नॉमेनक्लेचर में सिंपली करते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 4 है, या ये कार्बन नंबर 2 है। सो 1,4 1,2 का मैं आपको बता रहा था कि इट डजंट मीन द पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम्स जस्ट लाइक इन नॉमेनक्लेचर। ये इस डाइन में कार्बन्स की पोजीशन शो करने के लिए, जैसे ये डाइन यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है, या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। तो कहीं से भी आप यहाँ इस तरफ से स्टार्ट करें या उस तरफ से, एक ही बात है। सो दिस इज 1 2 3 and 4. Again, remember that these 1 2 3 4 may not be the 1 2 3 4 carbon atoms of a molecule. इस केस में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो। Now, 1,4 addition का मतलब क्या है? We are adding HBr across this diene. Now, it's not a simple double bond or addition across a double bond, but it's addition across a diene. तो 1,4 का मतलब है कि इसमें से H जो है या HBr का एक एटम जो है वो कार्बन 1 पे अटैच होगा और दूसरा जो है वो कार्बन 4 पे अटैच होगा। और कार्बन 1,4 किस चीज के? डाइन के, मॉलिक्यूल के जरूरी नहीं है, डाइन सिस्टम जो है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है उसमें। सो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्जुगेटेड एडिशन है यहाँ पर, इसमें H इस कार्बन पे अटैच हुआ, तो अगर इसको हम 1 कंसिडर करें तो H जो है वो कार्बन 1 पे अटैच हुआ और Br जो है वो कार्बन 4 पे अटैच हुआ। सो इट्स अ 1,4 एडिशन, ठीक है। और डायरेक्ट एडिशन को हम 1,2 एडिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक एटम जैसे H जो है वो कार्बन 1 पे अटैच हुआ और Br जो है वो कार्बन 2 पे अटैच हुआ। तो इस तरह से हम इसको 1,2 एडिशन या 1,4 एडिशन तो समझ में आती है, जिस तरह हम पहले डबल बॉन्ड्स के क्रॉस एडिशन देख चुके हैं, तो वो तो समझ में आती है। लेकिन कॉन्जुगेट एडिशन किस तरह से हो रही है, तो मैकेनिज्म क्या होगा? HBr की एडिशन का मैकेनिज्म आपको पता है कि क्या होता है। सबसे पहले, क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल की अटैचमेंट होगी इनमें से किसी एक sp2 कार्बन के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें H+ है और H+ जो है वो आपके पास 4 पोजीशन हैं, इनमें से कहीं भी ऐड हो सकता है। इन केस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन आपके पास कार्बन 2 इज इक्वल टू कार्बन 3 एंड कार्बन 1 इज इक्वल टू कार्बन 4, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। सो आप दोनों साइड से एडिशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है? हाइड्रोजन का अटैच होना, जिसकी वजह से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। तो पहला स्टेप क्या है? कार्बोकैटायन। तो हमने ये देखना है कि कार्बोकैटायन कहाँ जनरेट होगा, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है ना। तो अगर हम इस डबल बॉन्ड पे एडिशन स्टार्ट करते हैं तो ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, ब्रोमाइड आयन निकलेगा, तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो H जो है वो सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाए तो कार्बोकैटायन यहां पर होगा, ये मैकेनिज्म आप पहले देख चुके हैं, और या फिर H जो है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो जाए और कार्बोकैटायन सेकंड कार्बन पे बने। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी। एक ये है कि हम सेकेंडरी को चूज कर रहे हैं। दूसरी मेजर वजह क्या है? कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, इन पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या अगर रेडिकल भी हो, तो जो चार्ज की डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें इस कार्बोकैटायन को, जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, इट्स एन आइसोलेटेड, इट्स एन एट एन आइसोलेटेड पोजीशन, तो ये कॉन्जुगेशन में या डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है
इस कार्बन पे ये इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, ये कहीं और डिस्पर्स नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एनी रीजन। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड, सॉरी, ये जो कार्बोकेटाइन है, इट दिस पॉजिटिव चार्ज कैन बी डिस्पर्स्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन विद दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जब डिस्पर्शन होती है चार्ज की, चार्ज डेंसिटी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो बल्कि डिस्पर्स हो जाए, तो उस सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये दो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि इस कार्बोकेटाइन के बनने के चांसेस ज्यादा है। अब हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ज डेंसिटी है ये इस कार्बन पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि ये इस तरह से कार्बन 2 और 4 के दरमियान डिस्पर्स होती है। सो जो चार्ज डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। सो नाउ दिस कार्बोकेटाइन कुड ईदर बी एट दिस 2 और इट कुड ईदर बी एट 4। तो एक कार्बन पे तो अटैचमेंट हो गई, हाइड्रोजन की तो अटैचमेंट हो गई, दैट इज योर कार्बन नंबर 1। तो जो हम 1 4 और 1 2 की बात कर रहे हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो 1 पे तो अटैचमेंट हो गई। अब आपने ये देखना है कि 2 पे अटैचमेंट होनी है या 4 पे अटैचमेंट होनी है। तो दोनों पे हो सकती है। यू कैन सी दैट दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज बोथ एट कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4, दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, इट कैन अटैक ईदर एट कार्बन नंबर 2 हियर और इट कैन ईदर अटैक एट दिस पोजीशन 4। तो अगर 2 पे अटैक हो तो ये डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट बनेगी, और अगर 4 पे अटैक हो तो कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। सो रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं, right? So this is the direct 1,2 addition product, and this one on the right hand side is the conjugate addition or 1,4 addition product. And now you can see that the hydrogen and bromine, they are attached at position 1 and 4 relative to each other. ये 1 है, 2 3 और ये 4 है, इसलिए इसको 1,4 एडिशन कहते हैं। और ये 1,2 पे एडिशन हो रही है तो इसको 1,2 एडिशन या डायरेक्ट एडिशन कहते हैं, right? So this is how a molecule of HBr or hydrogen halide could be attached or added across two double bonds which are in conjugation with each other.